Hare Krishna. So now we'll start from Bhagavad Gita 3.24. आज हम तीसरे अध्याय का 24 नंबर श्लोक का पढ़ेंगे. तो रिपीट कीजिए मेरे साथ. उत्सीदेयुरि मे लोका Utsideyorimaloka उत्सीदेयुरि मे लोका Videyorime loka न कुर्यां कर्म चेदहम् Nakuryam nakuryam Karma karma Chedaham ched aham न कुर्यां कर्म चेदहम् Nakuryam Karma nakuryam karma Chedaham ched aham शङ्करस्य च कर्ता स्याम् Sankarasya shankarasya chakartasham शङ्करस्य च कर्ता स्याम् karasya chakartasham उपहन्याम् इमाः प्रजाः upahanyam prajaha उपहन्याम् इमाः प्रजाः upahanyam imah prajaha. थैंक यू. उत्सी देहु का मतलब है would be put into ruin. इमे all these लोकाः words. न not. कुर्याम I perform. कर्म prescribed duties. चेत if aham I. संकर्ष्य sankarasya of unwanted population. Cha and karta creator Sam would be upahanyam would destroy imaha all these prajaha living entities. Translation. Repeat after me. If I did not perform prescribed duties, If I If did I not did perform not perform prescribed duties, all these worlds would be put into ruination. All all these all words these words would would be be put to ruination. nations. I would be the cause of creating unwanted population, I would be the I cause would be the of cause of creating creating unwanted unwanted population, population, and I would be thereby destroy the peace of all living beings. and And I I would would and I thereby would destroy thereby the peace of destroy the all peace of living all beings. living beings. Purport by His Divine Grace, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. So one paragraph, maybe one of you can start. Can I, Prabhuji? Hare Krishna. Yes, Mother. Varna Sankara is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check the social disturbances, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. When Lord Krishna descends naturally, he deals with such rules and regulations in order to maintain the prescribed necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord Himself descends and corrects the society. We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate Him. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan Hill as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being. We have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. The Srimad Bhagavatam 10.33.3031 affirms, Naitat samacharej jatu manasapi ya anishwaraha vinashyatya acharam modhyat हतारुद्र भिद्धिजां विषम् ईश्वरं वचः सत्यं तथा तथा एव चरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्. Anybody can continue from here. Thank you, Mataji. Anyone would like to continue? Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. One Yes, should Prabhu. follow Yeah. the instructions of the Lord and his empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed.
However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. We should always consider the position of the Iswaras, or those who can actually control the movements of the sun and moon, as superior. Without such power, one cannot imitate the Ishwaras, who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean, but if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja, marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Rasa Leela or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhana hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but simply follow their instructions, nor should one try to occupy their post without qualification. There are so many incarnations of God without the power of the Supreme Godhead. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी आप लोग टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लीजिए और चैट में शेयर कीजिए पॉइंट क्विकली। So thank you all for sharing nice points. Yeah, we should understand what is the position of Ishvara, who is superior. थैंक यू गिरिजा माता जी, थैंक यू ऑल, सबको धन्यवाद। अच्छा अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया है। अभी मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। मोहन प्रभु ध्यान से सुनिए। अ, पहला पॉइंट ये है कि भगवान, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पहले भगवान क्या कहते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। व्हाट लॉर्ड इज सेइंग एंड देन व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं, वो खुद बोल रहे हैं, सोचिए आप, भगवान कह रहे हैं मैं अगर अपना जो मेरा जो धर्म है वो नहीं करूंगा, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मैं नहीं करूंगा, मेरे जो ड्यूटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर नहीं करूंगा तो ये पूरा दुनिया बिखर जाएगा। एवरीथिंग विल बी ruined। ruined का मतलब भी लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ruining? दैट वी विल हैव अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ना संकरा, एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स, यहाँ पे ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, सभी प्राणियों के बारे में बात हो रही है कि अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर उसे अच्छे से नहीं करूंगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया जो है वो नष्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि वो पूरा दुनिया जो है उसमें रहने वाले लोगों का पीस खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो लोग जन्म लेंगे और जो लोग बनेंगे वो क्या होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन। उनको कोई वैसा लोगों को नहीं चाहता है, उसको कहते हैं वर्ना संकरा, अनवांटेड पॉपुलेशन। आपने सुना होगा वर्ना आश्रम, ये है वर्ण शंकरा। वर्ण शंकरा एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जिसका कोई भी स्पिरिचुअल गोल नहीं है, आध्यात्मिक गोल नहीं है, नो, दैट पर्सन डजंट हैव एनी स्पिरिचुअल गोल इन लाइफ, दे डोंट इंक्वायर, उनको जिज्ञासा भी नहीं है जानने की, और वो अपने लाइफ में अपने को खुश करने में व्यस्त हैं। दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, सेटिस्फाइंग देयर ओन डिजायर्स। उन लोगों को हम कह सकते हैं कि वर्णा शंकरा। वो कुछ भी फॉलो नहीं करते, शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, भगवान को भी फॉलो नहीं करते। इसमें उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो भक्त नहीं है लेकिन मंदिर आते हैं, उनकी बात नहीं, वो वर्णा शंकर नहीं है। एटलीस्ट वो मंदिर तो आ रहे हैं, एटलीस्ट दे आर कमिंग टू टेम्पल विद सम डिजायर, दे आर नॉट वर्णा शंकर। वर्णा शंकर मीन्स दे डोंट, वो पूरे रिजेक्ट करते हैं शास्त्रों को, और वो कुछ भी नहीं मानते, अपने मन की करते हैं, जो भी अच्छा लगे करो, जस्ट डू इट। आई थिंक सम ब्रांड हैज दिस टैगलाइन, राइट, जस्ट डू इट।
जस्ट डू Nike. इट मीन्स नाइकी, यस यस, नाइकी का ब्रांड। जस्ट डू इट, डोंट थिंक सो मच, बस करो। आप, ये आपको अच्छा लगता है ना सुनने को, सुनो। ये आपको खाना पसंद है, खाओ। ये यहाँ पे जाना पसंद है, जाओ। तो दैट इज द जस्ट डू इट। तो वो लोगों को भगवान कह रहे हैं कि ये वर्ण संकर है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान खुद अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग, डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्टली, लेट्स से सम, इफ आई एम नॉट डूइंग, देन दे विल बिकम लाइक दैट। मेनी ऑफ यू पेरेंट्स, राइट? आप लोग पेरेंट्स है, आप लोग देखो, अगर बच्चे कल को खराब होते हैं तो आपको लगता है ना, आप सोचते हैं पहले कि ऐसा कुछ मैंने किया था क्या जिसकी वजह से आज मेरा बेटा ऐसा हो गया। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? होता होता है ना, ये सर, नो, इट हैपेंस, राइट? हम्म। कि मेरी बेटी ऐसे क्यों की, शायद हम हमारे पालन पोषण में कुछ कमी रह गया है क्या? मीन्स द फर्स्ट थिंग वी डाउट इज दिस। पहला चीज हम डाउट करते हैं कि हम हमसे कुछ गलती हो गया। और सोसाइटी भी वैसा ही देखता है। आप किन किन के घर के लड़की हो, आप किन के घर के बेटे हो, फ्रॉम विच फैमिली डू यू बिलोंग टू, वेयर इज योर हाउस, हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, दे आस्क दिस क्वेश्चन। यानी कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन। यानी कि पेरेंट्स को कैसा बनना पड़ेगा? वेरी रिस्पॉन्सिबल। हमेशा पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रहना है। और एज डिवोटीज वी आर एक्चुअली ऑल पेरेंट्स, not only to our kids, to the people, to our members, to everyone in the society, we are parents actually. Because we are trying to teach something, preach something. हम सबके माता पिता जैसे ही बिहेव करते हैं ना, क्योंकि हम किसी को समझा रहे हैं कि आप ये ज्ञान को समझो, भगवत गीता में क्या बताया गया है। तो हम छोटे लेवल पे गाइड कर रहे हैं किसी को। तो हमें भी वैसा ही रिस्पॉन्सिबल होना है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल लाइक दैट। एंड वॉट एवर वी डू, पीपल विल इमिटेट। भगवान जो करेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। भगवान अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो लोग लेंगे। वैसे ही माता पिता अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बच्चे लेंगे। बहुत सारे माता पिता आते हैं कि प्रभु हमारे बच्चे क्यों खाली मोबाइल फोन पे ही रहते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन मोबाइल फोन, दे आर ऑलवेज प्लेइंग, दे डोंट लिसन टू अस। वन इज देयर एसोसिएशन विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो है कि उनका एसोसिएशन स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे जो भी हो रहा है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। ठीक है, हम अगर अपना समय, कुछ कुछ माता पिता हैं जो कि उतना समय नहीं देते हैं मोबाइल पे, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे निकलते हैं वो गलत संग के कारण। बट मैक्सिमम टाइम पे होता है कि पेरेंट्स खुद भी मोबाइल में टाइम रहता है उनका, और उनको लगता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं मोबाइल में बहुत सारे लोगों को रिप्लाई देता हूँ, मैसेजेस। लेकिन जब बेटी देख रही है तो उसको क्या लग रहा है, ये तो मोबाइल पे बैठा हुआ है। He doesn't know that I am doing, let's say, preparing a poster in mobile, yeah, something else and thing. So we have to be very careful what we are doing. So tomorrow we cannot complain. Today I was going to washroom in office. There was one statement written in a wall. It was written for security. What is meaning of security? Hmm? It is simple as A, B, C. A for always, B for B, C for careful. Okay. Security means always be careful. It was written there. So we have to be always careful. ABC. The method is ABC. Always be careful. So if we are careful in our bhakti, if we are careful in our practice of Krishna consciousness, अगर हम हमेशा केयरफुल हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान केयरफुल है। इसीलिए वो वरिड हैं कि अरे मेरे बच्चे ऐसे हो गए, मुझे जाना पड़ेगा। आई किसी को भेज भी नहीं सकते। कोई करेगा नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है, एक दो लोगों को भेज दिया फिर भी नहीं हुआ, अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ द लॉर्ड इज अपियरिंग हियर।
हम भी वैसे ही करते हैं ना बच्चों के लिए, फिर पहले किसी को भेजते हैं कि आप देख लो, टीचर्स को भेजते हैं, टीचर आप समझाओ, बच्चों को वो मान जाएगा। टीचर नहीं समझा पाते हैं तो फिर हम खुद बोलते हैं कि ठीक है, हमें ये ट्राई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वी हैव विद द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड इज ऑलवेज सो केयरफुल अबाउट अस। भगवान हमारे लिए इतने केयरफुल है कि क्या हो रहा है इसके लाइफ में, क्या कर रहा है वो। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट द लॉर्ड इज सेइंग। तो जब जब हम यहाँ से क्या हम लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं, whenever we don't take responsibility, who are dependent on us, they will never take responsibility. It can be children, it can be members, it can be people of the society, it can be your team in office, you know, it can be anything. Whatever we do, they will imitate us. Simple. If we are lazy, they will become lazy. If we are proactive, they will be proactive. This is very simple rule. It is nothing new that we are discussing. But yes, and the Lord is also citing that yes, even I have to do that. Even if I am not attached to any work, any duties. But if I keep idle, sit idle, people will think that if I will also sit idle. That nature will come because we are his children. So it is our responsibility to be responsible. This is one point that Krishna is saying. First point. तो हमें रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और ये लाइफ लॉन्ग हमें रहना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि कुछ उम्र तक रहेंगे बाद में नहीं रहेंगे, हमें हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तब जाके हम कोई रेस्पॉन्सिबल बच्चों को बड़ा कर पाएंगे। ठीक है, या बच्चे हमारे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपने लाइफ में, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल बनेंगे जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम अगर ढीला ढाला है, वो भी ढीला ढाला बनेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को इमिटेट ना करो। हिंदी में दो वर्ड है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, इन हिंदी देयर आर टू वर्ड्स, अनुकरण एंड अनुसरण। संस्कृत, एक्चुअली हिंदी में नहीं बोलूंगा, दिस इज संस्कृत। संस्कृत देयर आर टू वर्ड्स, अनुकरण, अनुसरण। सो वी कैन डू अनुसरण, बट वी कैन नॉट डू अनुकरण। अनुसरण मीन्स फॉलोइंग, एंड अनुकरण का मतलब है इमिटेट करना, कॉपी करना, कॉपी पेस्ट। फॉलो करना, कॉपी पेस्ट करना, दोनों में फर्क है। फॉलो जो करता है वो समझता है कि क्या करना है। कॉपी पेस्ट जो करता है, कभी आपने समझा है कॉपी पेस्ट करते वक्त क्या लिखा है? अच्छा ही होगा, बस कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट करने से फिर क्या होगा, वो अनुकरण हो जाएगा, इमिटेटिंग। एक्चुअली पहला जो भगवान कह रहे हैं, वो दूसरा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो अलग नहीं है, वो सेम ही है। तो इसीलिए देखो ना, लोग कहते हैं कि राम जी ने मांस खाया तो मैं खा लूंगा, हालांकि वो गलत है, उसका रीजन अलग है। और कृष्णा ऐसे करते हैं, शिव जी ऐसे करते हैं, तो हम भी करेंगे। जितना अच्छा है वो भूल गए लोग। जितना वो जो समझ पाएंगे वो, गोवर्धन हिल उठाना है, किसी दानव का हत्या करना है, जो भी है वो सब भूल गए। और जो उनके समझ से बाहर है, उसको समझ के बैठे हैं कि ये हमारे भगवान ने किया है, हम उसको रिपीट करेंगे। दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल, सो वी शुड नॉट इमिटेट। यानी कि दोनों तरफ से हमें बताया जा रहा है कि पहले है कि एज ए लीडर वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरा है कि एक लीडर भी किसी का फॉलोअर है। समझ रहे हो ना, कोई आज के डेट पे लीडर है, कोई गुरु है, तो वो भी किसी का डिसाइपल है, किसी का शिष्य है वो। ए गुरु इज समवन्स डिसाइपल, ए लीडर इज समवन एल्स फॉलोअर ऑल्सो, राइट। तो पहले जो कृष्णा का स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि एज ए लीडर वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। फिर प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से समझते हैं कि एज ए फॉलोअर वी शुड फॉलो ओनली, नॉट इमिटेट। सो दिस हैज टू गो हैंड इन हैंड, क्योंकि हम नीचे जो दे रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ऊपर से जो ले रहे हैं उसको फॉलो करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है।
So as long as this two process of giving and taking goes on, then there will be no Varna Sankara. There will be peace for every living entity. यहाँ पे लिखा है और एक लाइन लास्ट में मुझे अच्छा लगा ये। आपने आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है कि भगवान के लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए लॉ है। भगवान के लिए नियम नहीं है, हमारे लिए नियम है। देर आर रूल्स फॉर अस, नॉट फॉर द लॉर्ड। कहाँ पे था वो? Maybe I am not getting. So why there are rules for us? Laws हमारे लिए क्यों बनाए हैं? क्योंकि नियम किसके लिए बनते हैं? जो अनुशासन को ब्रेक करता है, उसके लिए नियम बनते हैं ना। नियम मीन्स व्हाट? पनिशमेंट। उसके अंदर में रहना है, यानी कि इससे बाहर ना जाना। नियम, नियम किसके लिए बनते हैं? ताकि जैसे कहते हैं ना, नियम एक वर्ड कहाँ से आता है? यमा, यमा, यू नो, यम मीन्स कंट्रोलिंग। So because there is a chance that if there is no rule, then we'll go out of that. चांस ऐसा है कि अगर नियम नहीं है तो हम उससे बाहर जाएंगे, क्योंकि हम अपने इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं। वी आर सेटिस्फाइंग आवर ओन डिजायर्स, तो we'll forget that what is our boundary. For that, these boundaries are set. Lord is always aware कि what is his boundary, what to do, what not to do. So for him, these laws will never be there because he is not doing for his satisfaction. Anything Lord doesn't do for his satisfaction. The Lord does for only his servants' satisfaction, devotees' satisfaction. भगवान भी ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। हमें हमें बताया जाता है कि भगवान की प्रशंसा के लिए करो, राइट। भगवान का थंब रूल है कि मैं अपने डिवोटीज के लिए करूंगा, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस हो जाए, चाहे मुझे निंदा सहना पड़े, चाहे मुझे लोग गाली दें, चाहे मुझे हथियार उठाना पड़े, चाहे मुझे whatever the Lord is ready to take curse on him. The Lord is ready to receive insult from everyone and public for his devotees. So Lord is ready to sacrifice. That is why he is called careful, fully giving care to his devotees, careful. And we should be also understanding that laws are there for us because when we do sense gratification, there will be boundaries set for us. Sometimes they say, if you are in Krishna consciousness fully, no need to follow any obligations. Means no need to follow any rules actually. Why? Because you are fully Krishna conscious, 100%। आप 100% कृष्ण कॉन्शियस हो गए हो तो आपको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी भगवान के क्वालिटी के जैसा सेम हो गया है कि आप खाली दूसरों के लिए सोचते हो ना, तो अपने लिए कुछ है नहीं। देर इज नो सेल्फिश डिजायर। So then why to follow boundaries? Why to follow laws? But that is only applicable when we are a pure devotee. So until we become a pure devotee, we should follow laws, we should follow rules, because that will keep us within the boundaries of our practice. So there is no need of law. Actually, in spiritual world, there is no law. There is no government, there is no law, there is no punishment, there is no, it is not required. It is not required ideally. Hmm. So I think these 3 points we are covering today. Any questions anyone has? किसी का कोई प्रश्न है? तो हमें एक अच्छा लीडर और एक अच्छा फॉलोअर दोनों साथ साथ बनना है। लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई माइक लेके लीड कर रहा है, ऐसा नहीं। लीडर अपने लाइफ में बनना है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स या ना सोसाइटी में मेंबर्स के लिए हमें लीडर बनना है। लीडर हम, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स को मानते हैं तो हम अपने आप लीडर बन गए हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से गुरु परंपरा में हम कनेक्टेड है,
और उन गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम अच्छे फॉलोअर भी बन गए हैं। ठीक है, तो वी शुड एम फॉर दिस थिंग। अगर भगवान कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे तो वर्ना संकर होगा, तो हम भी अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, सोसाइटी में लॉस होगा ही होगा। हम प्राणियों को दुख देंगे डेफिनेटली। कोई तो कहता है कि प्रभु मैंने तो शादी नहीं किया है, तो फिर तो वर्ना संकर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इम्पैक्ट खाली फैमिली पर रहता है, इन सोसाइटी में भी हमारा इम्पैक्ट रहता है। हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं वो भी बेकार बन जाएगा, क्योंकि वो हमसे फॉलो, हम जिन 5 लोगों से बात करेंगे, हम अपना एसोसिएशन उसको दे के हम उनको भी बेकार कर देंगे। राइट, सो इट इज ए न्यूसेंस, दिस पीपल आर न्यूसेंस इन द सोसाइटी। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन, देयर आर मेनी इनकारनेशंस ऑफ गॉड विदाउट पावर ऑफ गॉड? मीन्स ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो किया है सब कुछ बाकी इनकारनेशंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो भगवान जब खुद आते हैं या उनके अवतारों को भेजते हैं भगवान है अवतारी, बाकी सब अवतार से। अवतारी यानी कि जिनसे अवतार आते हैं, फ्रॉम होम द अवतार कम्स, द इनकारनेशंस कम, ही इज कॉल्ड अवतारी। तो लॉर्ड इज अवतारी, सो ही विल हैव ऑल, एवरीथिंग, all the powers. So whoever are coming as incarnations, they will come for a specific purpose. So they will not have all the pastimes or leelas like Lord, and they will not have all powers like Lord Supreme. That is the meaning. So the incarnations are also limited in their activities, कि ये लीला करेंगे, हो गया, वापस डन। बट लॉर्ड विल एग्जिबिट वेरी elaborately। भगवान कृष्ण जो है वो elaborately सब कुछ उनका पास टाइम्स करते हैं, तो इसीलिए ये लाइन लिखा गया है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर शेयरिंग? प्रभु जी, हम्म। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है। बेसिकली मेरे लिए तो है क्योंकि मैं रियलाइज करती हूँ, और बाकी अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये क्वेश्चन मुझे लग रही है सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये जो हम लोग का जब बच्चे को बड़ा करती हो, तो उसमें उसमें जो हम लोग शिक्षा देती हो, शुरू से कृष्णा कृष्णा का जो नेचर है जो फॉलो, वो छोटा बचपन से हम लोग दोगे तो उसका नेचर अलग होगा, राइट? यस। अगर वो बच्चे अगर वो रास्ते में लेट होगा, जैसे हम लोग अभी कृष्णा कॉन्शियस में पहले शुरू से नहीं किया, इसलिए जैसे लगता है ना हम लोग अभी अभी कृष्णा के कॉन्शियस में है, ऐसा लगता है बच्चे भी हमारे जैसे हो जाए, बच्चे भी सुबह उठ के नहा धोआ के थोड़ा घर साफ सफाई करके पूजा में लग जाए थोड़ा तो वो वाला फीलिंग्स अभी क्या रियलाइज होता है कि मैंने बहुत लेट करके ये कृष्णा के शरण आया। तो ये पॉसिबल नहीं है जो मेरे फैमिली को उसी मेरे जैसे बनाने के लिए, क्योंकि मैं 3 साल से रे हर संडे उधर जाके ये वाला जो अभी जो भी है मेरे अंदर तो वो लाती हूँ। लेकिन मेरे फैमिली को जब देखती हूँ ये चीज नहीं करता है, बस घर ऐसे रहती है, कभी नहाता है कभी कुछ करता है, तो वो चीज मुझे बहुत वो फिर रियलाइज होता है। उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आता है अपने के ऊपर। जे शायद अभी जो जनरेशन नेक्स्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसका मैरिज नहीं हुआ, उनका आगे जाके मैरिज होगा, वो कृष्णा कॉन्शियस में उसका बच्चे जो भी होगी, तो शुरू से वो बच्चे को अगर वही कॉन्शियसनेस डालेगी तो वो सही स्टेप पे आएगी। प्रभु जी वो मुझे वही वाला क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगता है सबके हम्म। हेल्पफुल होगा। हम्म। और हम्म। प्रभु जी और एक बात है, वो जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये होता है, जो बोलता है ना अपना कर्म के हिसाब से वो जन्म तो लेता है, लेकिन अपना कर्म के हिसाब से उसका भक्ति कितना करके आई, बाकी नेक्स्ट लाइफ में उसका आगे जाके वो भक्ति वही सेम प्रोसेस में उसको मिलती है। तो ये दो चीज मुझे समझाई प्लीज प्रभु जी। पहले आपने जब शिक्षा की बात किया ना, देखो अभी इसलिए तो हम कहते हैं कि हर 4 महीने में हमारा शिक्षा है। हमारा शिक्षा यही है, ये शिक्षा सबको लेना है। अभी आप जो शिक्षा कर रहे हैं ना, कि हाँ हम भगवान को मानेंगे कि
शास्त्र का अध्ययन करेंगे, मानेंगे कि वो भगवान है, क्यों भगवान है, क्या क्वालिटीज हैं। अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये स्टडी ही है ना, जैसे कि सब्जेक्ट है ये, उसको पढ़ रहे हैं। भागवतम से पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, ये ट्यूशन से है ना, ट्यूशन क्लासेस हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस। थोड़ा कोई कमजोर है, कोई वीक है, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगा, स्पेशल क्लासेस। यही तो हो रहा है संडे हमारा, क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये स्कूल ही है, राइट। हम जो अभी है, अभी स्कूल में हमने एडमिशन लिया है इस्कॉन के स्कूल में, तो ये शिक्षा सबके लिए होना चाहिए। हाँ, तो उसका प्रगति भी क्लास 1 से क्लास 2, हमारा क्लास 1 है, श्रद्धावान क्लास 2 है, ठीक है ना, भक्त कृष्ण सेवक कृष्ण साधक क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ऐसे ही है, स्कूल ही है ये। तो ये शिक्षा सबको मिलना चाहिए, ये है असली शिक्षा। हम अपने बच्चों को भी क्या दे रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम उनको स्कूल में भेज रहे हैं, जो वहां पे ये सब शिक्षाओं का कोई वैल्यू नहीं है, ना ही बाकी जो बच्चे वहां पे आते हैं उनको इस शिक्षा के बारे में पता है, तो वो गलत शिक्षाएं ले रही हैं। हमारा जो लेट में हम कृष्णा कॉन्शियस में आ रहे हैं अभी, वी आर कमिंग सो लेट, व्हाई, बिकॉज किसी ने हमें ये स्कूल में बताया नहीं। तो ये शिक्षा जरूरी है, शास्त्रों से जो शिक्षा मिलना है, तो जो लेगा वो, हम भी पहले उन्हीं के जैसे थे, लेकिन हमने अभी लिया, तो हमारा, हमने अभी लिया यानी कि हमारा बचपन अभी शुरू हुआ, ठीक है, हम अभी शुरू किया है। चाहे हम, हमारा एज अभी 56 है या 45 या 32 है, वट एवर इट इज, तो हमारा नर्सरी में हमने एडमिशन अभी लिया 2 साल पहले, ठीक है, फिर हम एग्जाम दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबको लेना है, तो जो जो लेंगे तो उनको उद्धार होगा, और बाकी जो नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हमें दुखी तो हैं ही हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको खाली हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रसाद दे सकते हैं, कभी भगवान का चरणामृत दे सकते हैं, कभी भगवान का फ्लावर्स दे सकते हैं, जैसे कि करते हैं ना स्कूल वाले, अभी घर घर घूम के कभी कभी देते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा ये सब है, आपके बच्चे आएंगे तो उनके खेलने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड है, उनको इतने सारे एक्टिविटीज में हम, हाँ, कोशिश करेंगे उनको ये करवाने के लिए। तो ऐसे ही लोग आते हैं, प्रसाद देते हैं, करताल कीर्तन, ऐसे ही हमें ट्राई करना है। बाकी किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो दूसरे स्कूल में वो एडमिशन ले ही चुका है, माया के स्कूल में, तो वो चलेगा। तो हमें प्रयास करना है कि हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, एडमिशन ले, ठीक है ना। और बाकी गुणों के बारे में आपने कुछ पूछा, हाँ पूछा, यानी कि मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन, बट हाँ, 3 गुण तो हैं ही यहाँ पे, हमारे डिजायर्स के हिसाब से वो 3 गुण एक्टिवेट होते हैं, कभी ये कभी ये वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उसमें मेरा फॉल्ट है क्या, जो बच्चे को जैसे अभी कृष्णा कॉन्शियस हमारा में। फॉल्ट है, क्यों हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हमने क्यों इतना लेट शुरू किया, फॉल्ट क्यों नहीं है हमारा, हमारा ये फॉल्ट है कि हमने क्यों, ऐसा नहीं है कि भारत में अभी तुरंत शुरू हो गया ये सब, पहले से भी शास्त्र थे, लेकिन हमारे प्रायोरिटी अलग थे, फिर हमने क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया उतने टाइम पहले। हमें भी किसी ने अप्रोच किया होगा, हमें लगा कि यार ये क्या है ये सब, हाँ, तो हमने नेग्लेक्ट किया है उसको, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यस, बट हम खुद को पूरा दायी नहीं कर सकते, लेकिन हम तो हैं ही रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल समझे कि वो लोगों ने हमें नहीं दिया, ठीक है, वो नहीं दिए, फिर वो उनका एनालिसिस है, ठीक है। और भगवान का सुकृति जब मिलता है तो तभी शुरू होगा, हमारा एफर्ट और भगवान का सुकृति दोनों के कॉम्बिनेशन से भक्ति शुरू होता है, ठीक है। आप अच्छे से कीजिए, आपके 21 जनरेशन ऊपर और 21 जनरेशन बाद में सबका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। वो भक्त नहीं बनेंगे तब भी उद्धार हो जाएगा उनका। और किसी का कोई प्रश्न है, एनी अदर क्वेश्चंस? अश्विन प्रभु, बालसरण माता जी, सबरीश प्रभु, आई टुक सम इन हिंदी बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? Yes, Prabhuji, I was asking Ashwin Prabhu to explain Dhananjay. ट्रांसलेट, हाँ, Yeah, Prabhuji. ओके ओके ओके। एनी क्वेश्चंस माता जी, एनी क्वेश्चन प्रभु, और एनी शेयरिंग?
Prabhuji, I have got one question. I don't know if it is silly. Why can't ISKCON bring up a Gurukul style of schooling to start Krishna consciousness to the children from their young age so that all people may enroll their kids in such schools? I'm not sure if it Yes. exists. No, no, it is not silly question. It is a very valid question. We need you. We need devotees like you who can give time and all. There is some school now devotees are trying to do, but it is not very easy. There is Okay. a school called recently launched this year only in Whitefield. I don't remember the school name. That is fully from nursery to class 10. Mhm. Mm, yeah, there is a school made by devotees. Started this year. I don't know whom I messaged. Okay. Sadhguru, bro. Sadhguru. No, 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 no. What temple on devotees? Acha, devotee name you are saying. I want to say the school name. One second. It was there. This one. Vidyamrit. A KC micro school. Vidyamrit. You can try. Grade 1 to grade 12. Oh, nice, Prabhuji. Just Google it. I'll Vidyamrit. take it. Yeah, Vidyam. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Yeah. But yeah, more such schools are required. Only one or two would not be enough considering the big size of the city. So we need more people to come together. These are all initiated after long years of planning and discussions. So yeah. And in our school, in our temple, we have a micro facility, as you know, Bhakta Prahlad School, Vaikuntha Kids. These programs are not full-fledged syllabus, but yes, they are trying to make similar things where this will be additional to the schools where our children, kids are going. Many are trying homeschooling. They are not sending their kids to school in Whitefield congregation, I know at least. They're not sending their kids to school at all because they're doing homeschooling. Like one in when we went to Melukote, that Prabhuji and Mataji, Anandini Mataji, Prabhu and Radha Mataji, they are doing homeschooling to their kids. They are never gone to school, so they are only appearing for exams for class 10th or whatever 7 and all by through this online boards. They can apply even if they don't have a school. So they study some syllabus at home and they mostly focus on Krishna conscious activities, and that is how they get degrees also. Homeschooling is also prevalently going, seeing so much of commercialization and things and stuff. Yeah. I was saying homeschooling is good. That is a valid thing. But let's say that say you're homeschooling now, but after when the kids grows up, goes to college, or like they start doing office, home that time also he has to face the non-devotee association there. How he will cope with that? That will क्यों be a big ऑफिस जाना है struggle क्यों for them. क्यों क्यों ऑफिस जाना है Yeah, somewhere नहीं मैं कह if रहा you हूँ want to have to no no do if you bhakti, you no, need to that is at what least have Mother money no with you, right? no no, no correct I didn't say that you should not earn money I said office क्यों जाना है again means what you are avoiding that for the kid for the 12 years or whatever years you are teaching again you are putting the same pressure on that person I'm saying he can go he or she can go I'm saying but what is the point they can start their own business they can do something they can make some small scale business what is so many things are there so many things are there okay if you want I can give you a list also they can open prasadam restaurants they can have boutique shops they can have agarbatti sales counters they can have many articles to be sold they can join full time in temple become what very minimal life they have to live right why so we have to bring our standards down also make them understand there will be no clash they will be more mature to understand that how the society behaves and how we have to be with the society till we have to practice our bhakti okay it is not it is sounding very different because majority of the people population are not into that but that will become normal when everybody or every other devotee will start doing that so nothing is impossible okay what do you think our all Lord Ram and Krishna and all other Pandavas what they did they this only right homeschooling only Gurukul is kind of a homeschooling only right
So that will mostly that becomes prevalent, then we'll not have. Now slowly jobs are going. I am praying that all jobs should go. Again, we should have farming and cultivation and everything. So like previous days, ये job होके ही बेकार है. अब it is because of this industrial revolution only we are suffering. You really see. Let's say all jobs will go. What will happen? People will go to their go to some little land. They will do farming. That is max they know. That's it. Back to old school. That is a very long term. Even getting a farm in this, like, if jobs goes, it cannot easily get a land like that because the entire नहीं नहीं area वो is होगा like अभी मतलब ये already. टेरेस पे अभी हो रहा है टेरेस पे फार्मिंग हो रहा है डोंट वरी so there will be no need of land Government if has to terrace bring farming. ideas first, and it will take a long time to implement that. Yeah, means that time is very fraction of time compared to the whole creation's planning of time. Okay, so leave that. So means we are speaking on that scale. Any other questions anyone has? Any other? Okay, so thank you all for joining. It was very nice to see many devotees participated in the Brahmotsavam festival and Narasimha Chaturdashi with a lot of enthusiasm. Still, I know who didn't do any seva. Maybe some of them were genuinely not there in Bangalore. Some of them were in Bangalore but didn't couldn't come, or maybe I am not aware of their happenings at home or some seriousness they fell into. Or something happened. So I pray that they all recover, that families recover, and all of you come back. So do not miss any opportunities the school is providing you for your purification. Okay. So our kids enrolling into school were more worried, but more than that, we should be worried as leaders to be in the school also, and follow the training. So if we follow, we become good leaders. And even if our kids are not homeschooled, are sent to other schools or whatever it is, they will still follow us if we are doing correctly. That hope at least we should have. Okay. Thank you all. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Thank you all. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Bhagavad Thank you, Gita. Prabhuji. Hare Krishna. Pranam.